Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX. Breaking news coming in this hour after Nida Khan, one of the prime accused, claimed that she's pregnant and she's not actually in HR at TCS. The Nashik Special Investigation Team has arrested Nida Khan's husband from the Mumbai area of Thane district. It's being reported that Nida's husband has been living in Mumbai for 2 months. Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, Nida's husband has now been arrested. शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? All right, I think we're having some connection issues with our reporter, but this is the big news coming in. Nida Khan's husband has been arrested. He has been reportedly arrested from Mumbai. He has been arrested by the Nashik SIT that, of course, is investigating the case. Siddharth Rege joins us for more on this story. Siddharth, a big arrest being made by the SIT. Give us more details. This has happened right after the family of Nida Khan has come out with a statement that saying that, she's not the HR head at the TCS office. She's in fact one of the telemarketers who was being framed in this particular case. However, it's important to note that Nida Khan herself hasn't been arrested yet. Her lawyer continues to say that she's not there at her home. She's been missing as well. And the fact that Nida Khan yet remains to be arrested, she remains absconding despite the statements that are being coming by her family, who continue to defend her, saying that there's a media trial that's been going on against Nida Khan. But here we have seen that the SIT has now arrested her husband from Mumbai, which is in Thane in Maharashtra as well, re-emphasizing on the fact that she remains the prime accused in this particular case despite what her family has been claiming. All right, more breaking news, in fact, as well coming up. Siddharth, stay with us. One of the major accused, Danish Sheikh's mother, has also given a statement related to her son's involvement in the case. Listening. ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें आपको क्या कहना है, आपकी साइड क्या है, क्या कहना है? मैं बताना चाहती है कि मेरा बच्चा बेकसूर है और उसका जो भी मामला चल रहा तो वो समझो पॉलिटिक्स वालों ने ज्यादा उछाल दिए। बाकी मेरे बच्चा तो बेकसूर है, क्योंकि वो ऐसा मामले में ज्यादा उसका ऐसा नहीं कि लड़कियों से बात करना, ये करना, घर में भी उसका वैसा बर्ताव नहीं था। यानी अपना बस नमाज पढ़ना और अपना ऑफिस में जाना, ऑफिस से घर पे आना, बस यही उसका रूटीन थी रोज की भी ऐसा। जो पूरा मामला भी बताया गया कि किस तरह दानिश जो है जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहा था और सेक्सुअल हरेसमेंट का जो पूरा मामला लड़की ने आरोप लगाया है, उसको लेके आप वो कैसा है कि दानिश ऐसा बोल रहा है ना, इस्लाम में लाने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की का इंटरेस्ट था। वो बार बार इन्हीं दानिश से पूछती थी कि तुम्हारा धर्म अच्छा है और तुम्हारे धर्म में क्या क्या होता है। बस ऐसा दानिश का कुछ नहीं था जैसा कैसा कि धर्म में उसको लाना है, और उसको नहीं कि इंटरेस्ट दानिश का कुछ नहीं था। वो लड़की का इतना इंटरेस्ट था, बार बार हमेशा धर्म के बारे में बोलती थी कि तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हारे धर्म में आना है और उसके बाद में क्या क्या करना है। तो बस नॉर्मली बात करता था ऐसा। अभी हमारे धर्म में जब लाना रहता ना तो पूरा यानी तरीके से लाए, तो जब मौलाना फिर 2 गवाह ऐसे लगते, ऐसे नॉर्मली बात करती थी। ये परिवर्तन बोलते हैं, धर्म परिवर्तन अलग चीज है और नॉर्मल बोलना एक अलग चीज है। अब उसने वो नॉर्मल बोलने पे जितना इशू कर दी कि भाई उसने मेरे को धर्म परिवर्तन में लाया। अब वो छोटी थोड़ी बच्ची थी कि भाई उसके बोलने पे लगे वो आ गई, है क्या नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे पूरा चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, आपने देखा ही होगा दानिश के ऊपर जो आरोप लगे, उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, दानिश पे तो मीडिया में तो बहुत ही उछाल है। मेरा बच्चा तो वैसा है नहीं। इतना तुम कभी देखेंगे ना मेरे बच्चे को तो तुम खुद बोलेंगे कि ये बच्चा ऐसा कर सकता, ऐसा है। वो बार बार समझो वो उसके तरफ से ही आके उससे बात करने की,
और बाकी बस नॉर्मल बात करता था, जैसा नॉर्मल बात करता था वो, बाकी ऐसा अफेयर वो कुछ नहीं था, क्योंकि अब वो शादीशुदा था ना, जब जॉब पे लगा तो जब वो शादीशुदा था पहले से, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो कैसा अफेयर करेगा। हमारे घर से मजहब में ऐसा सब गलत बताते कि भाई जब औरत है तो दूसरे के तरफ नहीं देखना, तो मुझे मेरे बच्चे पे भरोसा है ऐसा। अभी आप क्या चाहते हैं कि अब जो ये आपका मामला अभी कोर्ट में है, तो आप क्या चाहते हैं कि बस मुझे न्याय पे भरोसा है कि भाई कोर्ट वाले मेरे बच्चे को न्याय दे बस, और मेरा बच्चा निर्दोष लिख ले, क्योंकि उसके इतने ऐसे प्रूफ है नहीं कि बाबा उसने गलत करा, बस इतनी बात करता था। तो नॉर्मल तो देखो ऑफिस में सब लोग बात करते, वो एक लड़के ने भी कंप्लेंट दी है, वो कंप्लेंट किए, लड़के ने करा कि भाई गोश्त खिलाता था वो, और मेरा बच्चा, मुझे मालूम है, हमारी बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं रिश्तेदार सबको मालूम है कि वो पूरा वेज है, क्योंकि मैं खुद वेज है, क्योंकि मेरे को नॉन वेज नहीं पसंद है, तो मैं जो बचपन से वेज खाती, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ में वेज ही खाने लगे। तो ये बात इतनी बुरी लगी मुझे कि वो लड़के ने कैसा। Shahid Ansari is with us live on this big story. Shahid, Danish's mother has spoken with the media. What has she said on her son's role? जी देखिए, सबसे पहले चीज की जिस तरह से ठीक है, उनकी माँ कह रही है कि निर्दोष है उनका बेटा और जिसकी शादी हुई है वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हम जो है बात जो कर रहे हैं जो SIT की है और ये जो FIR हुई है, FIR की कॉपी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है और FIR में स्पष्ट है कि आपको मैं तफसील से बता देता हूँ कि FIR जो पीड़िता है उन्होंने क्या कहा है। पीड़िता ने अपने बयान में जो है FIR में कहा है जो कि दानिश से उसकी दोस्ती हुई और दानिश ने बताया कि वो ये जो है पहले से जानने वाले भी थे एक दूसरे के। दानिश ने जो है जॉब भी लगाने की बात की, फिर इसके साथ साथ जो है एक रिसोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है पीड़िता ने कि दानिश ने और उसके साथी ने भी जो है उनके साथ जो है ना सिर्फ केवल जो है उनको जो है सेक्सुअल हैरेस किया है, बल्कि इन दोनों के साथ फिजिकल रिलेशन भी हुआ है। और जब बात शादी की आई, मतलब कि यहाँ तक बात आई थी कि शादी करने की बात आई थी, और तब तक जो है जो आरोपी दानिश है उसने जो है पीड़िता को नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी जो है मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। दानिश की पत्नी ने जो है पीड़िता को फोन करके बताया। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर जानना बेहद जरूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि पीड़िता ने अपने बयान में ये भी बताया है कि हिंदू मजहब को लेकर जो है कई सारी टिप्पणियां की गई है, और हिंदू और मुस्लिम इन सब के बीच में जो है इस्लाम मजहब को जो है ज्यादा बेहतर बताया गया है। ये जो पीड़िता के बयान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है आपको बताऊं कि शिवलिंग के बारे में भी जो है आपत्तिजनक बातें कही गई है। हिंदू मजहब, हिंदू धर्म के बारे में जो है आपत्तिजनक बातें कही गई है। ये पीड़िता ने अपने बयान में लिखा है, जिसकी कॉपी जो है हमारे पास मौजूद है। अब देखिए, इस पूरे मामले में जैसे FIR भी है और इसके अलावा जो है और भी कई FIR, तो इस मामले में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात और इसके साथ साथ जो पीड़िता की बातचीत है, ये चीजें भी जो है, देखिए अगर किसी की शादी हुई है और वो तो अगर किसी के साथ जो है संबंध बना रहा है तो वो भी तो नियम के हिसाब से गलत है। इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके दोस्त ने जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें इसमें है जो शायद उनके परिवार को मालूम नहीं है, या वो मालूम होते हैं वो चीजें बोलना नहीं चाहते। ये भी चीजें भी हो सकती है। जबकि हमारी जो है नासिक पुलिस के और SIT के जो आला अधिकारियों से बातचीत हुई है उसमें 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि इतनी जो FIR हुई है, हर FIR में जितने भी आरोपी हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में, उन्हें वापस से तलब किया जाएगा। दूसरा ये कि टेरर फंडिंग या इस तरह की बिल्कुल बने रहिए आप हमारे संग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आ रहा है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र